الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی مہینہ ذی الحجہ کے مہینے میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ ذی الحجہ کے مہینے کی فضیلت و اہمیت ہمیں سارے ماحول میں خود بخود نظر آتی ہے۔ وہ ہے احرام میں لپیٹے ہوئے لبیک کی صدا لگاتے ہوئے حاجی اللہ کے مہمان بن کر مکے کی طرف رواں دواں ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنے قبیلوں سے، اپنی اپنی آبادیوں سے، اپنے اپنے گھروں سے لوگوں کو رخصت کرنے کے لیے جوش و خروش کا جو اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ اس ماہ کی اہمیت اور افادیت کی طرف ہمیں اشارہ کرتا ہے۔ سامعین اکرام، آج جو ٹاپک اس ماہ کی مناسبت سے میں آپ کے درمیان لے کے آئی ہوں وہ ہے عشرہ ذی الحجہ کی اہمیت و فضیلت۔ سامعین اکرام، اس عنوان کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر کے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا حصہ ہوگا کہ اس عشرے کی اہمیت کیا ہے، دوسرا حصہ ہوگا اس میں کیے جانے والے اعمال کیا ہیں، اور نمبر تیسرا ہے کہ اس ماہ کا پیغام کیا ہے۔ اس طرح اس عنوان کو پوری طرح ہم مفصل انداز میں انشاءاللہ سمجھتے ہیں۔ سامعین اکرام، یہ مسلمانوں پر اللہ رب العالمین کا بڑا کرم ہے کہ وہ انہیں ایسے اوقات اور ایام سے نوازتا ہے جس میں عمل کر کے میزان حسنات میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ مبارک ایام فوقتاً آتے رہتے ہیں، اور ان ایام میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو اپنے قریب کرتا ہے، انہیں نیک اعمال کی ترغیب دیتا ہے اور ابھارتا ہے کہ وہ ایسے اعمال انجام دیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ رمضان کا مہینہ بھی انہی مبارک مہینوں میں سے ایک تھا جس میں مسلمانوں کو عبادات کا جوش دلایا جاتا ہے، اور جس میں جذبوں کو اور شوق کو ابھارا جاتا ہے، اور مسلمان اس میں خوب عبادت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد شوال کا مہینے میں انسان داخل ہوتا ہے، اور شوال کا مہینے میں 6 روزے مشروع قرار دیے جاتے ہیں، اور ان 6 روزوں کو رمضان کے ساتھ ملا کر 1 سال کے روزوں کے برابر اجر دیا جانے کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ چند دنوں کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے جو اس وقت ہم اس میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ مہینے کا پہلا عشرہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ 10 دن اس قدر عظمت والے ہیں کہ ابو عثمان الہندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلف و صالحین 3 عشروں کا خاص اہتمام کیا کرتے تھے اور تعظیم کرتے تھے۔ نمبر 1 رمضان المبارک کا آخری عشرہ، نمبر 2 ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، نمبر 3 محرم الحرام کا پہلا عشرہ۔ یہ مختلف مہینوں کے وہ مبارک ایام ہیں جن کا سلف و صالحین بہت اہتمام کرتے، لہٰذا ہمیں بھی ان ایام کا اہتمام شعور و ترجیحات کے ساتھ، شوق و لگن کے ساتھ کرنے چاہیے۔ سامعین اکرام، اللہ رب العالمین ہی کی تعریف ہے جس نے اوقات و زمان کو پیدا فرمایا اور ان اوقات میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی، اور کچھ مہینوں اور ایام کو خصوصی فضیلت اور اہمیت کی حیثیت بھی دی ہے، اور ایسے فضائل سے نوازا ہے جس میں اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنے بندوں پر فضل و کرم بڑھ جاتا ہے تاکہ انہیں اعمال صالح کرنے اور اطاعت و فرمانبرداری کرنے میں اس سے تعاون مدد حاصل ہو، اور نشاط و چستی کی تجدید ہوتی رہے تاکہ مسلمان ثواب کا وافر مقدار میں اس کو حاصل کر سکے، اور وہ موت کے آنے سے قبل ہی اس کی تیاری کرتے ہوئے روزے قیامت کے لیے بھی زیادہ اکٹھا کر سکے۔ سامعین اکرام، اطاعت و فرمانبرداری کے مواسم کے فائدے یہ ہیں کہ جو کچھ رہ گیا ہے اور عمل نہیں کیا جا سکا ہے، اس کمی کو پورا کیا جائے، اور اس کے عوض میں کچھ اعمال ایسے کر لیے جائیں کہ اس کی فضیلت والے موسموں سے ہر ایک موسم میں کوئی نہ کوئی ایسا کام پایا جاتا ہے جس پر عمل پیرا ہو کر بندے اللہ تعالیٰ کا قرب یا تقرب حاصل کرتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کا فیضان ہوتا ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ چاہے اس پر اپنے فضل و کرم اور رحمت سے مہربانی کرتے ہیں، لہٰذا وہ شخص بہت خوش نصیب ہے جو ان موسموں اور مہینوں
اور ایام اوقات میں اپنے پروردگار کی اطاعت و فرما برداری کر کے اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرنے کی غنیمت جانتا ہے. لہٰذا ہو سکتا ہے کہ ایسے شخص کو اس مہربانی کی خوشبو حاصل ہو اور وہ سعادت حاصل کرتے ہوئے جہنم کی آگ اور اس کے شعلوں سے محفوظ ہو جائے. اطاعت و فرما برداری کے عظیم موسموں میں ذی الحجہ کے پہلے 10 دن بھی ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے باقی سارے سال کے ایام پر فضیلت دی ہے. ہجری سال کا آخری مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے. ذی الحجہ کے اس مہینے میں زمانہ جاہلیت میں بھی حرمت والے مہینوں میں اس مہینے کو شمار کیا جاتا تھا اور زمانہ اسلام میں تو اس کی حرمت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے. بالخصوص اس کا ابتدائی اشرا ذی الحجہ کا پہلا اشرا عبادات اور اللہ تعالیٰ کی طرف عنابت کے حوالے سے انتہائی اہمیت رکھنے والا مہینہ ہے. اس مطلب جو ہے ایام میں جہاں ایک طرف حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے والے فخر کی مطلب جو ہے لباس میں احرام میں ملبوس ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے ہوئے اور اپنے ایمان کو جلا بخشتے ہیں، وہیں دوسری طرف اس فریضے کی ادائیگی نہ کرنے والے اہل ایمان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب و تحریض ہمیں احادیث میں جہاں بجا ملتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک نیک اعمال کے حوالے سے فرمایا کہ ان دنوں سے زیادہ پسندیدہ دن اور کوئی نہیں ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا جہاد بھی اس سے بڑھ کر نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاد بھی اس سے بڑھ کر نہیں ہے الا ایک کہ کوئی شخص اپنی جان اور اپنا مال لے کر اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے اور واپس کچھ نہ لے کر آئے، یعنی شہادت بھی نصیب ہو اور مال بھی خرچ ہو جائے. سامعین اکرام، ذی الحجہ کے مہینے کی دیگر مہینوں پر فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں 4 بڑی عبادات کو یکجا کیا ہے جو کسی اور مہینے میں ادا نہیں کی جا سکتی. ایک ہے حج، دوسرا ہے نماز، تیسرا ہے روزہ اور چوتھا ہے قربانی. اس خصوصی عبادت کے لیے اس مہینے کا انتخاب اس کی فضیلت کو واضح کرتا ہے. سامعین اکرام، آئیے اس تمہید کے بعد ہم مطلب جو ہے اس موضوع کے حساب سے ہم مطلب جو ہے اس عشرے کی اہمیت کی طرف چلتے ہیں. سامعین اکرام، اس ماہ کے ابتدائی عشرے کی فضیلت قرآن مجید کے اندر سورہ فجر آیت نمبر 1 اور 2 میں اللہ رب العالمین نے کی، والفجر ولیال عشر. ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے. اس آیت کے سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان 10 راتوں کی قسم سے مراد ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان راتوں کی قسم کھا کر یہ ظاہر کر دیا ہے کہ یہ راتیں اللہ کے نزدیک عظمت والی ہیں. اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں یوں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک کوئی دن عشرہ ذی الحجہ کے ایام سے زیادہ عظیم نہیں ہے اور نہ ان دنوں سے بڑھ کر کسی دن کا نیک عمل اسے محبوب ہے. لہٰذا ان دنوں میں تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ اور تکبیر یعنی اللہ اکبر اور تمہید یعنی الحمدللہ کی کثرت کرو. سامعین اکرام، اس عشرے کی فضیلت بتاتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس عشرے میں ایک عمل کا ثواب 700 گنا تک بڑھتا ہے. اس عشرے میں عرفہ کا دن بھی آتا ہے جس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دن بکثرت لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کیا جاتا ہے، اس لیے فرمایا کہ اللہ سے مغفرت کے طلبگار بنو. سامعین اکرام، ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے یہاں عظمت والا دن یوم النحر یعنی قربانی کا دن اور یوم عرفہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی سب سے بہترین دعا امت مسلمہ کو یوں سکھائی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لاحق نہیں، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اسی لیے بادشاہیت اور تعریف ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے. یہ ہے وہ دعا جو وقت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھائی اور صحابہ کرام اس کا مطلب جو ہے بار بار تکرار کیا کرتے تھے اور اس کو پڑھا کرتے تھے. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
ये 4 चीजें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी तर्क नहीं की। एक है आशुरा का रोजा यानी 10 मुहर्रम का रोजा, दूसरा है जिलहज्जा के पहले अशरे यानी पहली तारीख से 9 तक के रोजे, और तीसरे मतलब जो है हर महीने 3 दिन के रोजे, और चौथे फजर की नमाज से पहले 2 रकत नमाजें। सामने कराम हदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फजीलत को वाज़ेह करते हुए यूं इरशाद फरमाया कि अरफा के दिन यानी 9 जिलहज्जा का रोजा 2 सालों के गुनाह का कफ्फारा अदा कर देता है, और वो साल जो गुजरा और दूसरा वो साल जो आइंदा आ रहा है। सामने कराम इस यौम अरफा को यौम मशहूद भी कहते हैं। इस अशरे में यौम नहर यानी 10 जिलहज्जा भी आता है, जो गैर हाजी के लिए ईद और कुर्बानी का दिन, और मतलब जो है हाजियों के लिए हज का बड़ा दिन है, जिसमें ऐसी इबादत और इताअत और फरमाबरदारी इकट्ठी होती है जो किसी और दिन में जमा नहीं होती। इन सब बातों से हमें इस अशरे की फजीलत का अंदाजा होता है कि जिलहज्जा वो महीना है जो हमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद, इसके कुर्बानी का अंदाजा, और अल्लाह के कुर्बत में बेटे को कुर्बान करने की अदा, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इताअत और फरमाबरदारी का अनोखा अंदाज तो तरबियत दरअसल हमें इस अशरे की अहमियत को दोबाला कर देता है। ये आयात ये अयाम हाजियों के लिए तो एक अल्लाह के करीब होने का मतलब जो है बेहतरीन जरिया है, और गैर हाजियों के लिए भी इस महीने से फायदा उठाने और अल्लाह के करीब जाने का जरिया है। अब आइए इस अहमियत के बाद हम मतलब जो है तीसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, वो है कि इस अशरे में क्या काम करने चाहिए। सामिन इकराम, इस अशरे में सबसे पहला काम मतलब जो है जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के जरिए से हमारे सामने आता है, वो है पहली चीज कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके पहले अशरे में 1 तारीख से लेकर 9 तारीख तक रोजा रखने की ताकीद हमें मिलती है। उसको कभी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तर्क नहीं किया। और दूसरा, इसी अशरे में 9वीं तारीख यानी अरफा के दिन रोजा रखने की ताकीद आई है उन लोगों के लिए जो गैर हाजी हैं, उनके लिए अल्लाह के कुर्ब को तलाश करने का जरिया मतलब जो है इस रोजे के जरिए से उन्हें दिया गया। और हाजियों के लिए इस दिन रोजा रखने की ताकीद नहीं है, बल्कि उस दिन उनको कहें मतलब जो है कमजोरी लाहक न हो जाए, और मतलब जो है इसके जरिए से उनकी इबादत में खलल न आ जाए। इस वजह से अरफा के दिन उनका क़याम, उनकी दुआएं, उनका जिक्र मतलब जो है अहमियत का हामिल है, और वहाँ हाजी मतलब जो है खड़े होकर अरफा के मैदान में अल्लाह से लो लगाते हैं, और मतलब जो है जिक्र अस्कार के जरिए से अल्लाह के करीब होने का जरिया तलाश करते हैं। सामिन इकराम, इस अशरे में 9 मतलब जो है रोजे रखने की ताकीद है, और 9 जिलहज्जे का रोजा रखना सुन्नत है। सामिन इकराम, दूसरा इस अशरे में 2 काम किया जाता है, वो है तकबीरात पढ़ी जाती हैं। तकबीर मतलब जो है 2 तरीके से, एक है हाजी की तकबीर अलग है, और दूसरी है गैर हाजियों की तकबीर अलग है। हाजियों की जो तकबीर है वो है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। इसके जरिए से हाजी बार बार मतलब जो है इसका इकरार करते हैं कि मैं हाजिर हूँ, हाजिर हूँ, हाजिर हूँ ऐ रब्बुल आलमीन तेरे पुकार के आगे। और जो गैर हाजी हैं वो भी इन 10 अय्याम में नमाज के बाद मतलब जो है तकबीर हम्द करते हुए नजर आते हैं। और मतलब जो है वो तकबीर क्या है, वो है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। यानी अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह के सिवा कोई शरीक नहीं है, और सारी हम्द अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। ये तकबीरात सुन्नत है, और मतलब जो है मस्जिदों के जरिए से मतलब जो है इसका ऐलान होता है, नमाज के बाद इसकी तकरार होती है। ये है गैर हाजी जो हम्द के जरिए से, इस तकबीरात के जरिए से वो अल्लाह के करीब जाने का ऐलान करते हैं। सामिन इकराम, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर और हजरत अबू हुरैरा रज़ी ताला अन्हु के सिलसिले में तारीख की मतलब जो है शाहिद है कि इस अशरे में मतलब जो है जिलहज्जा के जब महीना आता तो ये दोनों हजरात बाजार में जाकर तकबीरात मतलब जो है पढ़ते रहते थे, तो लोग भी इनके साथ तकबीर कहते थे। ये दोनों हजरात सिर्फ तकबीर कहने के लिए बाजार जाया करते थे। सामिन इकराम, जिलहज्जा के अयाम में तकबीरात अल्लाह की अजमत का ऐलान का खास मतलब जो है जरिया है। ये सिर्फ अल्फाज का विर्द नहीं है, बल्कि एक मोमिन
مومن کے عقیدے، شعور اور زندگی کے رخ کا اظہار ہے، اور یہ تکبیر انسان کو یاد دلاتی ہے کہ سجدہ، امید، خوف اور محبت صرف اللہ کے لیے ہے۔ تکبیر دراصل شرک، نفس پرستی اور دنیا پرستی کے خلاف مطلب جو ہے اعلان جنگ ہے۔ سامعین اکرام، اس بات کو امام ابن قیوم رحمۃ اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں کہ تکبیر بندے کے دل میں اللہ کی عظمت اور زبان پر شکر پیدا کرتی ہے۔ یہ تکبیرات انسان کو یاد دلاتی ہے کہ اپنے نفس سے بڑا اللہ کو مانو، اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع کر دو، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرو اور زندگی کو بندگی کے لیے وقف کر دو۔ سامعین اکرام، تکبیرات صرف عید کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ ایمان کی آواز ہیں کہ میری زندگی میں سب سے بڑی حقیقت اللہ رب العالمین ہے۔ یہ شعور اگر امت مسلمہ میں پیدا ہو جائے تو پھر وہ تقوی کی جو صفت مطلب جو ہے قربانی کے ذریعے سے جو پیدا اللہ رب العالمین کرنا چاہتا ہے، وہ صفت اس کے اندر پیدا ہو جائے گی، اور پھر مطلب جو ہے امت مسلمہ کا یہ معاشرہ سکون پذیر اور امن پذیر اور اسلامی معاشرے میں تبدیل ہو جائے گا۔ سامعین اکرام، اس کے بعد تیسری عبادت جو اس عشرے میں کی جاتی ہے وہ ہے یوم النحر، یعنی قربانی کا دن بھی مطلب جو ہے اسی میں ہے، عشرے میں ہے، یعنی 10 مطلب جو ہے ذی الحجہ کو قربانی کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یادگار ہے جو سورہ حج آیت نمبر 37 میں اللہ رب العالمین نے یوں ارشاد فرمایا۔ ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ تک قربانی کے جانوروں کا نہ گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی خون، بلکہ اللہ تعالیٰ تک تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ سامعین اکرام، قربانی کا یہ عمل حاجیوں کے لیے کے ساتھ مشابہت کا عمل ہے، جس میں ایک گونا گو ترغیب اور تشویق کا پہلو بھی اس میں غالب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قربانی کرنے والوں کے لیے حاجیوں سے مشابہت کے پیش نظر اپنے بال نہ منڈوانا اور ناخن نہ کتروانا نہ مستحب ہے، اور مطلب جو ہے اسی لیے مطلب جو ہے کہا گیا کہ قربانی کے ذریعے سے انسانوں کو تقوی حاصل ہوتا ہے۔ وہ تقوی کی وہ صفت ہے جو انسانوں کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ تقوی دراصل اللہ کا خوف اور ڈر ہے، اللہ سے ملاقات کا مطلب جو ہے خوف ہے، اس کے سامنے پیش کیے جانے والے نامہ اعمال کا وہ مطلب جو ہے حصہ ہے کہ جس میں انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو اللہ رب العالمین اس قربانی کے ذریعے سے مطلب جو ہے انسانوں کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی پکار آ جائے تو لبیک کہتے ہوئے، آمنا و صدقنا کہتے ہوئے ہر مطلب جو ہے آواز پر وہ اس مطلب جو ہے قربانی کو انجام دے، اور یعنی مطلب جو ہے اپنی ہر مطلب جو ہے نعمت کو اللہ کے حوالے کر دے۔ یہ وہ مطلب جو ہے وصف ہے، یا یہ وہ مطلب جو ہے عمل ہے، یا وہ اطاعت ہے جو اس قربانی کے ذریعے سے اس عشرے کے اندر عمل پیرا ہونے والا مطلب جو ہے نظام قائم کیا گیا ہے۔ چوتھا مطلب جو ہے جو کام اس عشرے کے اندر مطلب جو ہے کیا جاتا ہے، اور وہ ہے کہ ذکر و اذکار۔ حاجی بھی اپنے پورے حج کے دوران میں ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھتے ہیں۔ ذکر اللہ کی یاد کرنا، ذکر اللہ کی یاد کا نام ہے۔ یہ صرف زبان سے کچھ الفاظ کا دہرانا نہیں ہے، بلکہ دل، زبان اور عمل کے ساتھ اپنے رب کو یاد رکھنا ہے اور کرتے رہنا ہے۔ انسان دنیا کے کاموں میں الجھ کر اکثر اپنے مقصد کو بھول جاتا ہے، اور ذکر اسے دوبارہ اپنے مطلب جو ہے خالق کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اسی لیے ذکر مومن کے دل کی زندگی، روح کی غذا اور ایمان کی تازگی ہے۔ اسی بات کو سورہ رات آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آگاہ رہو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور جو ذکر نہیں کرتا، ان کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ سامعین اکرام، ذکر کا اصل مقصد صرف ثواب جمع کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ جب بندہ بار بار اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کے دل میں خوف خدا، محبت الہی اور آخرت کی فکر بیدار ہوتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو مطلب جو ہے 4 اعمال کی شکل میں ہم اس عشرے میں مطلب جو ہے اعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پہلا ہے روزہ رکھنا، دوسرا ہے تکبیرات مطلب جو ہے ادا کرنا، تیسرا ہے مطلب جو ہے قربانی کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہونا، اور چوتھا ہے ہم مطلب جو ہے ذکر و اذکار کے ذریعے سے اللہ کے قربت کی طرف مطلب جو ہے رواں دعویٰ ہونا۔ سامعین اکرام، ہر مطلب جو ہے مہینے کا ایک مطلب جو ہے بالخصوص مطلب جو ہے عمل ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین انسانوں کے اعمال کو کثیر مقدار میں اس
इसको मतलब जो है बढ़ाने और नेक अमाल यानी हसनात को जमा करने में इसकी मदद करता है। इसी के लिए इन अमाल करने की ताकीद की गई है। ये मतलब जो है ये अशरा दरअसल मतलब जो है इबादत का महीना है, इसमें एहसासात को उभारने का महीना है, अल्लाह की तरफ कदम बढ़ाने का महीना है ना। मतलब जो है अवाम मतलब जो है जो समझ बैठे हैं, मुसलमान उम्मत जो समझ बैठी है कि गोश्त खाने का महीना है। सामिन इकराम, ये गोश्त खाने का महीना नहीं बल्कि इसके जरिए से इजहार मतलब जो है अक़ुव्वत और मतलब जो है इजहार मतलब जो है इताअत का मतलब जो है इजहार है, जो इस महीने के इन अमाल के जरिए से करने की ताकीद हमारे सामने आती है। इस उन्वान के तीसरे हिस्से की तरफ चले तो वहाँ है इस मतलब जो है मौजू के तीसरे हिस्से की तरफ चले तो वो है इस मतलब जो है महीने का या इस अशरे का पैगाम क्या है। क्योंकि पैगाम वो मग़ज़ होता है जिसके जरिए से इंसान के मतलब जो है जहन को खोलने में मदद मिलती है, इसके जरिए से सोचों की धारा बदल जाती है, इसके जरिए से अकीदे में मजबूती आती है, ईमान की तजदीद होती है और मतलब जो है नफ्स का तस्किया मतलब जो है अमल में आता है और इसी के जरिए से अल्लाह बंदे अल्लाह के करीब जाने में मतलब जो है मदद हासिल करते हैं या मतलब जो है उस जरिए के जरिए से अपने नाम अमाल में हसनात को जमा करते हैं। तो इस पैगाम की तरफ चलते हैं जो इस महीने के जरिए से मुझे और आपको दिया जाता है। सामिन इकराम, माह ज़िलहज्जा इबादत, कुर्बानी, ईसार, तौबा और अल्लाह के करीब होने का महीना है। इस महीने में बंदे को याद दिलाया जाता है कि जिंदगी का मकसद सिर्फ दुनिया जमा करना नहीं है बल्कि अल्लाह की रजा हासिल करना है। ज़िलहज्जा हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और इनकी बेमिसाल इताअत और कुर्बानी की याद दिलाता है। ज़िलहज्जा का पैगाम इताअत और कुर्बानी है। ज़िलहज्जा का सबसे बड़ा सबक अल्लाह के हुक्म के आगे अपनी ख्वाहिश कुर्बान मतलब जो है कर देने का मतलब जो है वो एहसास है जो इसके जरिए से पैदा करवाया जाता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उस वाक़े की तरफ जरा सा नजर डालकर देखें जहां मतलब जो है बार बार सुनते रहते हैं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा था कि बेटे को मतलब जो है ज़ुबा कर रहे हैं और मतलब जो है इसका जिक्र उन्होंने अपने बेटे से किया और बेटा मतलब जो है बगैर किसी तरद्दुद के मन्ना वो सद्दखना के मिज़दाक में अब्बा जान जो हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया है उसे कर डालिए, उसे आप मुझे साबिरों में से पाएंगे। इस मतलब जो है इताअती अल्फाज के साथ वो मतलब जो है उठकर खड़े हो गए और मतलब जो है एक मतलब जो है कुर्बान करने वाला बाप और दूसरा कुर्बान होने वाला बेटा अल्लाह की रजा के लिए राजी होकर आप जो है चल पड़े हैं। ये वाकया मुझे और आपको कुरान मजीद के मतलब जो है मुख्तलिफ मतलब जो है सूरतों में इस वाक़े की बार बार मतलब जो है याद होता है, बार बार हम सुनते हैं। ये वाकया ये अदा हमें मतलब जो है सोचने पर मजबूर करता है और दूसरी तरफ सबक देता है कि अल्लाह की रजा के सामने अपना सबसे महबूब चीज भी कुर्बान कर देने में तहम्मुल नहीं होना चाहिए, जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस अदा के जरिए से मुझे और आपको सिखाया गया। इसी अदा के नतीजे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का दोस्त करार दिया और मतलब जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी अदा के नतीजे में आसमान से दुम्बा भेजकर मतलब जो है कुर्बानी का हुक्म दिया और इस्माईल अलैहिस्सलाम को सही सालिम उनके बाप के मतलब जो है के गोद में डाल दिया। सामने कराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी की जान लेना नहीं चाहता, किसी को मतलब जो है हद से ज्यादा तकलीफों में मतलब जो है डालकर मशक्कत नहीं करवाता, मगर मतलब जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों की नीयतों में इखलास पैदा करना चाहता है, उनके अंदर शौक और लगन को उभारना चाहता है, उन्हें अल्लाह के मतलब जो है उस मिशन यानी मकसद अजीम की तकमील के लिए मतलब उठ खड़े होने वाले जज्बात को मतलब जो है उभार कर उस मकसद अजीम की तरफ यकसुई मतलब जो है दिलवाता है। इसीलिए हर महीने की कोई ना कोई मतलब जो है इस्लामी मतलब जो है इबादत हमें मतलब सबक देती है कि अल्लाह के करीब होने का जरिया तलाश किया जाए। सामिन इकराम, कुर्बानी सिर्फ जानवर मतलब जो है कुर्बान करने का नाम नहीं है बल्कि दिल की इस्लाह का नाम है, क्योंकि दिल बेशुमार मतलब जो है खदशात में रहता है और बेशुमार मतलब जो है ऐसे मतलब जो है गलत मतलब जो है रुझानात से लबरेज होता है। इसका तस्किया
शर्त अव्वल है। इस तज़किये के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन रमज़ान के महीने में इबादत की कसरत के ज़रिए से उसके तज़किये का सामान करता है, और दूसरी तरफ ज़िलहज्जा के महीने में कुर्बानी की मतलब जो है अदायगी के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन उस जज्बे को बेदार करता है जहाँ मतलब जो है दिल की इस्लाह होती है और वो अल्लाह के आगे झुक जाता है। सूरह हज में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि अल्लाह ताला को ना गोश्त पहुंचता है और ना खून, बल्कि तुम्हारा तकवा पहुंचता है। इस आयत को मुझे और आपको बड़ी मतलब जो है एकसुई के साथ और शऊर के साथ इसको समझने की जरूरत है। ये आयत मुझे और आपको बताती है कि कुर्बानी मतलब जो है जो की जाती है, इसका गोश्त अल्लाह को कोई अहमियत नहीं रखा जाता, ना मतलब जो है इसका खून मतलब जो है इसकी अहमियत का हामिल है, बल्कि जो चीज मतलब जो है अल्लाह को मकसूद है वो है तकवा, कि अल्लाह के हुक्म पर मतलब जो है किस तरह तुम रिएक्ट करते हो, किस तरह हाजिर खिदमत हो जाते हो, किस तरह अपनी चीजों को अल्लाह के हवाले कर देते हो, अपनी महबूब से महबूब तरीन चीज का मतलब जो है इस तरह कुर्बानी करना हजरत इब्राहिम और इस्माईल अलैहिस्सलाम के वाक़ये के जरिए से हमें बताया गया। ये है वो अदा जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद है। ऐसे बंदे अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद है और ऐसे बंदे अल्लाह रब्बुल आलमीन के दोस्त हैं, और इन्हीं को अजर और सवाब के एतबार से बेहतरीन रुतबा, बेहतरीन अजर मिलता है। हम मतलब जो है सिर्फ ख्याली मतलब जो है पलाव के जरिए से, ख्याली मतलब जो है उम्मीदों के जरिए से सिर्फ दुआ मांगते रह जाए तो जन्नत का हुसूल नहीं होता। उसके लिए मेहनत दरकार है, उसके लिए कुर्बानी दरकार है, उसके लिए इखलास लिल्लाहियत दरकार है, और उसी के जरिए से आदमी कामिल मतलब जो है ईमान वाला करार पाता है और उसमें कामयाबी हासिल हो जाती है। सामीन इकराम, ये जो आयत सूरह हज की आपके सामने जो पढ़ी गई कि अल्लाह को ना गोश्त पहुंचता है ना खून, बल्कि तुम्हारा तकवा पहुंचता है, ये आयत और ये वाकया हमें सिखाता है कि अल्लाह के हुक्म के सामने सर झुकाना, अपने ख्वाहिशात को कुर्बान कर देना और तकवा इख्तियार करना और आखिरत की फिक्र करना दरअसल एक कामयाब मतलब जो है मोमिन की निशानियों में से एक है। सामीन इकराम, ज़िलहज्जा का महीना दरअसल उम्मत की ईमान की मतलब जो है जांच है। अपनी जिंदगी, ख्वाहिश, माल, वक्त और मोहब्बत सब अल्लाह के सुपुर्द कर दो, यही असल कुर्बानी है, यही असल बंदगी है। ज़िलहज्जा का महीना अपने पैगाम के एतबार से नए अज़्म, नई रूहानियत और बंदगी के नए सफर का आगाज होता है, और ये वो महीना है जिसमें बंदा अपने ख्वाहिश के मकसद पर मतलब जो है गौर करता है, अपने रब के सामने झुकता है, अपने ख्वाहिशात को कुर्बान करता है और अपनी सच्ची तौबा के जरिए अल्लाह से करीब होने की कोशिशें करता है। ये महीना दरअसल ईमान की तजदीद और दिल की इस्लाह का मौसम है। सामीन इकराम, ज़िलहज्जा असल में कुर्बे इलाही का मौसम है। हज, अरफात, तकबीरात, कुर्बानी, रोजे है और जिक्र, दुआ सब मतलब जो है इंसान को अल्लाह के करीब जाने के जरिए हैं। और मतलब जो है हज दरअसल अल्लाह के दरबार में हाजिरी का मतलब जो है नाम है, और गैर हाजियों की कुर्बानी दरअसल इताअत अल्लाह की पासदारी का ऐलान है। लाखों इंसान एक लिबास, एक आवाज में अल्लाह के हुक्म का ऐलान करते हैं कि दुनिया की हर मसरूफियत और माल तेरे नजदीक कोई मानी नहीं रखता, हम तेरे पुकार पर तेरी मुलाकात के लिए हाजिर है। ये है वो हाजियों का अंदाज, ये है वो वालिहाना मतलब जो है इजहार जो हर हाजी मतलब जो है दो कपड़ों के एहराम के साथ अल्लाह के दरबार में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा लगाते हुए अल्लाह के उस मतलब जो है घर यानी मतलब जो है खाने काबा की तवाफ करता हुआ नजर आता है, मिना, मुज़दलिफा और अरफात में क़याम करता हुआ नजर आता है। सामीन इकराम, ये वो इजहार है जो इंसान जो हाजी मतलब जो है करते हैं, और दुनिया के दूसरे करोड़ों मतलब जो है इंसानों की कुर्बानियां, जो जानवरों की कुर्बानियां अदा की जाती है, इस बात का ऐलान है कि अल्लाह के क़ुर्ब के लिए वो दुनिया की हर चीज को कुर्बान करने का अज़्म रखते हैं। अल्लाह से क़ुर्बत के लिए किसी खास जगह की शर्त नहीं है, बल्कि सच्चे दिल की जरूरत है। सामीन इकराम, ज़िलहज्जा इस दिल को बेदार करने का बेहतरीन वक्त है और तौबा के जरिए माजी की गलतियों से पलट आने का महीना है। ज़िलहज्जा इंसान के बातिन को झिंझोड़ने वाला महीना है। ये महज चंद इबादत का मजमुआ नहीं है, बल्कि इंसान की पूरी जिंदगी
जिंदगी के रुख को दुरुस्त करने की मतलब जो है दावत देता है। सूरह ज़ुमर आयत नंबर 53 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, तर्जुमा है कि अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद न हो, अल्लाह सब गुनाह बख्श देता है। सामिन इकराम, हदीस कुदसी में है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरा बंदा नवाफिल के जरिए से मेरा कुर्ब हासिल करना चाहता है, यहाँ तक कि मैं इससे मोहब्बत करने लग जाता हूँ। सामिन इकराम, यही असल कामयाबी है कि अल्लाह की मोहब्बत इंसान को मिल जाए। शायर बड़े मतलब जो है वालेहाना अंदाज में इन तमाम बातों को मतलब जो है एक शेर के जरिए से मतलब जो है इसका इजहार करता है। कहता है कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार हो जाए। ये है वो असल मतलब जो है पैगाम, ये है वो असल कामयाबी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन उम्मत मुस्लिमा के लिए मतलब जो है अता करता है। और इसी के लिए हर इस्लामी महीना कोई ना कोई सबक लेकर आता है। इन तमाम बातों को रखकर जरा मतलब जो है अपने दिल पर हाथ रखकर मुआशरे पर निगाह डाल कर देखें, आज करोड़ों की तादाद में मुसलमान दुनिया के हर कोने में कुर्बानी करते हुए नजर आते हैं। लाखों की तादाद में मतलब जो है जानवर कुर्बान होते हैं और उनका गोश्त मतलब जो है अवाम में तकसीम होता हुआ नजर आता है। मगर मतलब जो है जो रूहानियत, जो मकसद, जो अमाल जो इस मतलब जो है पैगाम के साथ मुझे और आपको मतलब जो है हासिल है और दी जा रही है, मगर उम्मत मुस्लिमा के अंदर वो चीज नजर नहीं आती। उम्मत मुस्लिमा का हाल ये है कि वो गोश्त खाने और गोश्त के कटवाने में इतने महू हो जाते हैं कि उन्हें कोई एहसासात नहीं है। कभी मतलब जो है मैं और आपने अपने दिल पर हाथ रख कर देखे, क्या मतलब जो है जो तकबीरात मतलब जो है इस मतलब जो है अशरे में की जाती हैं, क्या ये तकबीरात का विर्द मेरी और आपकी जबान से होता है? अगर तकबीरात मेरी और आपकी जबान से होता है तो क्या ये तकबीर मुझे और आपको मतलब जो है खौफ, उम्मीद और मोहब्बत के साथ अल्लाह की तरफ मतलब जो है राग़िब होने में मददगार साबित हो रही है? क्या मतलब जो है इस ऐलान के जरिए से मेरे और आपके अंदर शऊरी जिंदगी का इजहार हो रहा है? क्या मेरे और आपके अंदर वाक़े इब्राहिम और इस्माइल के जो वाक़े के जरिए से मुझे और आपको मतलब जो है जो चीज मतलब जो है अता होना है, सबक हासिल होना है, क्या वो मतलब जो है शऊरी एहसासात के साथ वो चीज पैदा हो रही है? क्या मैं और आप अल्लाह के मतलब जो है राह में हर चीज मतलब जो है जो नेमत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे और आपको दी है, जिसकी पुकार अल्लाह रब्बुल आलमीन हर मतलब जो है वक्त मतलब जो है मेरे और आपके सामने करता है, क्या मेरी और आपकी जेबें खुल रही हैं? क्या मेरे और आपके औकात मतलब जो है अल्लाह के रास्ते में लग रहे हैं? कि मेरी और आपकी सलाहियतें अल्लाह के रास्ते में लग रही हैं? क्या मेरे और आपकी मतलब जो है गोद में परवरिश पाने वाली औलाद अल्लाह के मतलब जो है राह में आगे बढ़ रही है? क्या उसकी सही तरबियत का सामान मैंने और आपने किया है? क्या मतलब जो है इस तमाम अय्याम के दरमियान में मेरी और आपकी इस्लाह मतलब जो है हो रही है? क्या ईमान की तजदीद मतलब जो है हर वक्त होती है? क्योंकि ये वो महीना है जहां मेरी और आपकी रूह को मतलब जो है परवान चढ़ाया जाता है, जिसमें इखलास लिल्लाहियत पैदा करने की कोशिश की जाती है और जिसमें बंदा मतलब जो है अपने मकसद अजीम पर मतलब जो है राग़िब हो जाता है। क्या मतलब जो है ये महीना मेरे और आपके ईमान की तजदीद और दिल की इस्लाह का मतलब जो है की फिजा को मतलब जो है हमवार कर रहा है? ये वो सवालात है जो इस मतलब जो है महीने में, यानी हर साल जब ज़िलहज्जा का महीना आता है, जहां मतलब जो है हाजियों की बड़ी तादाद अल्लाह के दरबार में मतलब जो है हाजिरी देने और मतलब जो है अल्लाह का मेहमान बनने के लिए हाजियों की शक्ल में मतलब जो है अपना बेशुमार पैसा कुर्बान करते हुए, अपने सारे प्यारों को मतलब जो है पीछे छोड़ते हुए, अपनी मतलब जो है तमाम मसरूफियात को त्याग कर मतलब जो है अल्लाह के रास्ते में सिर्फ अल्लाह की मतलब जो है रजा के खातिर जहां वहां जाते हैं, तो क्या ये तमाम मतलब जो है लाखों की तादाद में हाजी बनकर लौटने वालों के सिलसिले में जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो ऐसे लौटते हैं जैसे मतलब जो है जब माँ के पेट से मतलब जो है जिस तरह उन्हें जन्म दिया जाता है, उसी तरह वो वापस मतलब जो है इसी मतलब जो है इसमें वापस लौट कर आते हैं। तो क्या मतलब जो है जो हाजी जो इससे पहले हो चुके हैं और जो हाजी बनने के लिए गए हुए हैं, क्या इन सब का रवैया एक सा है? क्या वही वो लगन है जो मतलब जो है इस मिज़दाक में मुझे और आपको सबक देने की मिक़दार में मुझे और आपको दी जा रही है? ये वो सवालात हैं जो सोचने पर मजबूर करते हैं। सामने इकराम, इसी के लिए मतलब जो है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बार-बार जो बात कहते थे, अपना मुहासिबा करो इससे पहले कि तुम्हारा मतलब जो है मुहासिबा किया जाए। अपने अंदर मतलब जो है एहसास की वो रमक को पैदा करने की जरूरत है, अपने अंदर वो शऊर को बेदार करने की जरूरत है। और इस मतलब जो है हर महीने के एतबार से जहां मतलब जो है इसकी मतलब जो है मुख्तलिफ अमाल को हर महीने की इब्तिदा में हम इसका इजहार करते
کرتے ہیں, इसके मतलब जो है तकरार करते हैं, इसे बार बार दोहराते हैं, क्या ये दोहराना मेरे और आपके लिए मुनाफा बख्श है? क्या ये फायदा दे रहा है? अगर नहीं दे रहा है तो ऐसी वो क्या चीजें हैं जो मुझे और आपको रोड़े लटका अटका रही हैं, जहां मतलब जो है इंसान गफलत का शिकार बन गया है, और जहां इंसानों की जिंदगियों का ये हाल है कि जो भी मतलब जो है कहा जाए एक कान से सुनकर दूसरे मतलब जो है कान से छोड़ा जा रहा है। और तीसरा ये है कि उनके नीयतों के अंदर इखलास व लिल्लाहियत पैदा नहीं हो रही है। तो ऐसा अगर हाल है तो उम्मत का हाल क्या होगा? ऐसा अगर हाल है तो उम्मत का ये माशरा मतलब जो है इस्लामी माशरा कैसा बनेगा? अगर यही हाल है तो जन्नतुल फिरदौस मांगने की जो तमन्ना है वो कैसे पूरी हो जाएगी? अगर ऐसा हाल है तो ये मुश्किलात जो माशरे पर मतलब जो है आ रही है, ये तकालीफ और आजमाइशें और जुल्म सितम का जो मतलब जो है परचान मतलब जो है इस माशरे में हो रहा है, उसका खात्मा कैसा होगा? उसका खात्मा सिर्फ मतलब जो है इन अमाल के नतीजे में, इस पैगाम की इत्तबा के नतीजे में, अपने दिल के तस्किए के नतीजे में, अपनी इस्लाह के नतीजे में, अपने अज़ाइम को मतलब जो है सही रुख पर गामज़न करने में, सही तरजीहात को मुरतब करने में ही मतलब जो है पोशीदा है। अगर हमने इस काम को मतलब जो है पीछे डाल दिया और पसे पुश्त मतलब जो है डालकर अगर हमने इससे आंखें बंद कर ली तो यकीन जानिए कि हर साल मतलब जो है बकरा ईद आएगी, हर साल लाखों की तादाद में मतलब जो है हाजी मतलब जो है उस सफर पर रवा होंगे और वापस लौट कर भी आएंगे, मगर हमारे माशरे के अंदर कोई तब्दीली वाक़ई नहीं होगी। तो सोचना, इस पर अमल करना, इस पर गौर फिक्र करना और मुहासिबा करना और सही रुख की तरफ गामज़न होना हर मतलब जो है उम्मत मुस्लिमा के हर फर्द की ये जिम्मेदारी है कि इस पर सोचे, गौर फिक्र करे, इन अमाल को शऊर के साथ अदायगी करे और मतलब जो है अपने रुख को मतलब जो है एकसू होकर मतलब जो है तौहीद की तरफ गामज़न करे। यही वो चीज है जो इस तमाम पैगाम के नतीजे में मुझे और आपको हासिल होती है। सामिन इकराम, इस पैगाम को मतलब जो है सामने रखकर आइए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि वो हमें इस माह की इबादत से सबक सीखने वाला बनाए और हर इबादत शऊर के साथ अदा करने की तौफीक दे, हमें कामयाब बंदों में शुमार शामिल करे और गलतियों से दरगुजर फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।